Hello students, how are you? Fine, right? So you are a warm welcome in the new session 2021 or in the new class, that is in class 10th. So this class is the first board of your life. This will be the first board of your life. Clear? So in this class, just we will be attentive, be serious towards our subject, that is called mathematics, right? So in this video or in this class, just we have come with mathematics chapter number 1, a real number. Clear? So real number, in real number we have just studied in class 9th many things, and before that also we have studied, but here a real number is just little bit different from that one. Clear? So you have studied various numbers like prime number, like prime number. What do you mean by prime number? So anyone? Prime number? Yes. So the number which is divisible by 1 and itself. The number which is divisible by 1 and itself, or the number which has only two factors, is known as prime number. Clear है prime number? That means the number which is divisible by 1 and itself. अब ये देखते हैं कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से एंड itself से डिविजिबल है. Let us suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Clear? 1 को आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन देखो कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स. 1 को कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है. और कोई itself 1 तो अगेन नहीं लिख सकते हैं, 1 तो एक बार लिख दिए. उसी तरह से 2 को कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा और 2 करेगा. 3 को कौन करेगा? 1 करेगा और 3 करेगा. 4 को कौन करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा. 5 को कौन करेगा? 1 करेगा और 5 itself करेगा. 6 को 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा. अब देख रहे हैं ओनली 2 फैक्टर्स. So only 2 factors. This is not a prime number. This is not a prime number. This is not a prime number. That means prime number is starting from 2, 3, 5, 7 and so on. Has only 2 factors. That is, they have only 2 factors like that one. Clear? So this is known as prime number. Clear hai? Now next one is twin prime number. Twin prime number. Twin prime number. Twin prime number. Twin, that means, what do you mean by twin? Twin, that means pair, जुड़वा ना. Okay. So pair. Twin prime number. So twin prime number is a set of 2 numbers in which there is a gap between one number. अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. Set of 2 prime numbers, but
there must be gap of one number. There must be gap of one number. एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2. So 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13 like that. But now set of two prime numbers. These all numbers are prime numbers and set of two prime numbers. But second condition, but there must be gap of one number. Is there gap of one number? No. That means this is not a pair of twin prime number. Is there gap of one number? Yes. Is there gap of one number? Yes. Is there gap of one number? No. That means this is not a twin prime number. Is there gap of one number? So these are the twin prime numbers like that. Note करें. Okay. Now what do you mean by whole number? Just you tell whole number. Whole number. Whole number, that means the number which is starting from 0. The number which is starting from 0. Whole number. The number which is starting from 0. Example 0 1 2 3 like that. This is whole number. Clear? Next is natural number. So the number which is starting from 1. The number which is starting from 1 is called natural number. Like that. 1 2 3 4 like that. Clear? Next one is rational number. And this is important. Rational number. What is rational number? So the number which is in the form of P by Q. In the form of P by Q, that means in fraction, where Q not equal to 0. The value of Q that not be equal to 0. Clear? So this is known as a rational number. Clear? Next one is irrational number. Irrational number. What is irrational number? So this is also in the form of, so the number which is in the form of P by Q, where Q not equal to 0, but this must be a non-terminating number. अब यहां पे देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो
एक होता है टर्म टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है टर्म नॉन टर्मिनेटिंग. सो इफ यू आर हैविंग अ फ्रैक्शन लाइक दिस, if you are having a fraction like this, if you are having a fraction like this, if you divide this 5 by 4, this will give you 1.25, 1.25, but this will not end, this will come 0.3333 and so on, so on. So this type of number is known as non-terminating number. Clear? That means whenever you divide numerator by denominator, it will not end at a particular digit, then this type of number is known as non-terminating number. And terminating number, so the number which when divided by denominator, after some time it will be divided completely, that means it is known as terminating number. Clear? Note it. नोट करें. थोड़ा इसको पीने का मन है, ये पिएगा. नोट करें. पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले. Okay, so now next one is LCM and HCF. So you have just studied LCM and HCF in class 4-5 like that. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग LCM and HCF. But here LCM and HCF will be totally different from that one. Clear? LCM and HCF. So next one is LCM and HCF. LCM that means lowest common multiple, and HCF that means highest common factor. So if you are having two numbers, or if you have to just factorize, another thing is factorize. Clear? या factorization. चलो किसी भी नंबर को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं. लेट अस सपोज दिस इज 12 एंड 12 को फैक्टराइज हम लोग करेंगे दिस डिवाइडेड प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. we divide by prime number, so this is 2 6 2 3. that means prime factorization of 12, this is also known as prime factorization. So this 12 can also be written as 2 into 2 into 3. This is known as prime factorization. Clear? Like that, if you are writing the prime factorization of 18 is 2 into 3 into 3. This is clear? So now using prime factorization we will find LCM and HCF. So for writing LCM here, just we take a smallest, lowest. So lowest or highest power, lowest and highest power first. So lowest number is 2, but highest power is 2 is one time here, but 2 is here 2 times. So 2 is highest power 2 times into, after that number is coming 3.
Yes, coming 3. So 3 is highest power, 2 times. Clear? That means जो नंबर हमारे यहाँ पे सेट में दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो सारे नंबर्स को लिखना है, लेकिन जिसका हाईएस्ट पावर है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा दोनों में, अगर जो नंबर दोनों में है और जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा, उसको मैक्सिमम टाइम रिपीट करने वाला नंबर को लिखना है। और जो अगर सपोज यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग 5 को भी लिखते। क्लियर है ना? लेकिन अगर वो दोनों में है तो उसको लिखना है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है, जो ज्यादा टाइम्स आया है। क्लियर? सो दिस इज द एलसीएम लाइक दिस. So LCM will be 36. So now next is ACF. ACF highest common factor. So common highest common factor के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों में common factor है, 2 है, और क्या है, 3 है. So 2 into 3 that is equal to 6. अगर ये इसमें दोनों में कोई ऐसा न रहे कॉमन फैक्टर तो 1 तो कॉमन फैक्टर होगा ही, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, और 1 जो है सबका क्या है, मल्टीपल है. से एग्जांपल एक कर लेते हैं. फाइंड एलसीएम एंड एसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. 11 and 13. First 11 and 13. Second 7, 9 and 10. क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हैं 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, दैट इज 1 into 11. क्लियर? 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 1 into 13. अब दोनों में एलसीएम, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू, दोनों में 1 है, उसके बाद देख रहे हैं 11 है, उसके बाद क्या है, 13 है. सो दिस विल बी योर एलसीएम. अगर मैं बात करूं एचसीएफ का, तो एचसीएफ में दोनों में क्या है कॉमन, तो दोनों में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 हो गया एचसीएफ. क्लियर है? सिमिलरली जस्ट 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into 7, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into 9, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into 2 into 5. So the LCM will be equal to 1 into 2 into 5 into 7 into 9. सारा नंबर को लेना है, लेकिन जो रिपीट करेगा तो मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा उसको लेना है. एंड LCF, so again we are not looking other than 1, so this is ACF 1. Clear? So this is known as prime factorization, and using prime factorization we have just obtained LCM and ACF of these numbers. Note करें. Okay. Next one is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. Okay, what is Euclid's division lemma? So using Euclid division lemma you have to find ACF. Using Euclid division lemma you have to find ACF of number 455 and 42 and 42. Clear? So यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि अगर दो नंबर्स का एलसीएफ निकालना है तो ग्रेटर नंबर
इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर आ जाए या जस्ट इसके अप्रोप्रिएट आए। तो इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, लेकिन 10 एक ऐसा नंबर है, 10 एक ऐसा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाता है 420। तो 420 आ जाता है तो बच कितना आ जाता है +35। क्यों +35? क्योंकि 420 +35 करेंगे तब तो 445 होगा। क्लियर? अब कहता है अगला स्टेप कि दिस 42 will be equal to this 35 into how much? That will give you 42. So into 1 plus 7 will give you 42. Clear? Again this 35 is equal to 7 into 5 plus 0 is equal to 35। तो यहीं पे स्टॉप हो गया। तो जिस जगह पे स्टॉप हुआ है वो मेरा क्या हो गया ACF। सो देयरफॉर ACF इज इक्वल टू 7। क्लियर है? क्लियर है? तो एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल 4 and 4052। क्लियर? चलो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 12576 इज इक्वल टू 4052। क्लियर? अगर इंटू 3 करें तो प्लस कितना करना होगा, तो चेक करते हैं। इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा। सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। हम लोग ये काम रफ में कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 12 1 5 6, 12 1 5 6। अब 12 1 5 6 है, यहाँ पे 12 5 7 6 है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। सो आ जाएगा कितना 0 6 6 0 7 5 2 एंड 5 1 4 420। क्लियर है? मतलब दिस इंटू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, इतना प्लस करना होगा तो इतना आएगा। क्लियर है? सो उसी तरह से नेक्स्ट वन इज 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू हाउ मच इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं आएगा, 4200 आ जाएगा। तो हम लोग को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या से मल्टीप्लाई करना होगा देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करके 420 इंटू 8 दिस इज 0 3360। अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 420 इंटू 9, सो 9037 इतना मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स हम लोग को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3780 आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे 3780 को, तो 3780 को माइनस करेंगे तो हम लोग को जो बचेगा 4052 3780 दिस इज 2 दिस इज 7 दिस इज प्लस 272। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं कि दिस 420 इज इक्वल टू दिस 272 इंटू हाउ मच। तो इंटू अगर 2 करते हैं तो बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए 1 करना होगा। तो 272, अब 272 इसमें से माइनस करके यहाँ प्लस करेंगे। सो कितना होगा दिस इज 8 दिस इज 4 1। क्लियर? सो नाउ दिस 272 is equal to 148 into how much? Into 1. So this is 148 again plus 4 2 1. Clear? So again 148 is equal to 124 into 124 into like that. So just you can
make like this, what you are getting, that will be your HCF. क्लियर है? सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो. क्लियर है? नोट करें. ओके. So next topic is our check the number four to the power n ends with the digit 0. अब देखना है कि 4 टू द पावर n एक ऐसा है कोई नंबर जो 0 से एंड करता है. अब ध्यान से देखना है कि 0 कब होता है. तो 0 जब हम लोग 2 into 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 into 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 into 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ही 0 आता है. क्लियर? मतलब कि 0 लाने के लिए हम लोग को 2 को 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. कोई दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 कभी नहीं आता है. और n मतलब यहाँ पे क्या होता है, n is equal to 1 2 3 like that. So if you put the value of n here, so 4 to the power n is equal to 4, 4 to the power 2 is equal to 4 into 4, 4 to the power 3 is equal to 4 into 4 into 4. That means if you put the value of n, this will not come or ends with the digit 0. This is why. This is because if you multiply two same numbers up to n times, this will not end with the digit 0. जब कोई सेम नंबर को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दे तो कभी आपस में 0, कभी उसका इन पॉइंट पे, इन डिजिट पे 0 नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि 0 तो आने के लिए दो डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और जो डिफरेंट जो नंबर है वो ये है 2 into 5, 4 into 6, 6 into 5, 8 into 5. So what is reason? That reason is this: since for getting the 0 at unit place, we need to multiply two different numbers like 2 into 5, 4 into 5, 6 into 5, 8 into 5. We cannot get the 0 digit in the end whenever you multiply the same number up to n times. जब हम लोग किसी सेम नंबर को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी 0 नहीं देगा. क्यों नहीं 0 देगा? क्योंकि 0 लाने के लिए हम लोग को दो डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसमें से एक नंबर क्या है, एक नंबर इवन है तो दूसरा नंबर 5 है. क्लियर है? तो 0, दिस विल गिव यू 0, दिस विल गिव यू 0, दिस विल गिव यू 0. तो एंड पोजीशन पे, यूनिट प्लेस पे 0 लाने के लिए हम दो डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर है? क्लियर है? ओके, नोट करें. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं दैट एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ two numbers is equal to LCM into ACF. Product of two numbers is equal to LCM into ACF. ऐसा होता है. So let us suppose, let
two numbers B A and B। अब हमारे पास दो नंबर्स क्या है, A एंड B। प्रोडक्ट A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होगा क्या? यस। अगर हम यहां से A की बात करें तो LCM इंटू HCF इज इक्वल बाई B होगा क्या? अगर हम बात करें B का सो LCM इंटू HCF बाई A होगा क्या? अगर हम बात करें LCM की, व्हाट विल बी LCM whenever two numbers are given, then A into B that is divided by HCF। अगर हम बात करें HCF का so A into B that is divided by LCM। क्लियर है? so this is the formula। now using example, जस्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि क्या परफेक्ट है या नहीं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर्स लेते हैं। एक नंबर लेंगे हम लोग 20 एंड सेकेंड नंबर हम लोग लेंगे, चलो सेकेंड नंबर हम लोग लेंगे 5 ही ले लिए, 15 ले लिए, चलो ठीक है। अब ये दो नंबर है, इसका हम लोग को सबसे पहले हियर A इक्वल टू 20 B इक्वल टू 15। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 मैक्सिमम टाइम इंटू 3 एक ही टाइम इंटू 5 है एक ही टाइम। सो दिस इज इक्वल टू 60। सो एलसीएम इज 60। now HCF is equal to what is common in between this 5, so HCF is 5। now verification। अब वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो वेरिफिकेशन में होता है A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ऐसा होता है क्योंकि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। सो A इंटू बी, A इज व्हाट 20, B is what 15 is equal to LCM is 60 and HCF is 5। so this will give you 15 to the 30, 300 is equal to 65 the 30। so this is verified। clear? that means formula is absolutely correct। note it, नोट करें। तो इस फॉर्मूला से हम कोई दो नंबर्स का एलसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, या वो दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर दिया है, एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया है, तो भी हम लोग उसका एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नोट करें। ओके 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 Now next one is तो इसी तरह से किसी भी नंबर्स को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। ट्री फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, ट्री फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए, देखे प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 लाइक दैट। बट हियर इज ट्री फैक्टराइजेशन, ट्री फैक्टराइजेशन, ट्री फैक्टराइजेशन। अब ये ट्री फैक्टराइजेशन क्या है, तो हमारे पास कोई लेट अस सपोज एक नंबर हमारे पास है 3276, कोई भी नंबर है 3276। अब इसको देखो ट्री फैक्टराइजेशन में कैसे ब्रेक करना है, तो इसको हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रखेंगे और इसको देखेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है। सो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक ऐसा बनाएंगे, 2 बना दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करो और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0। अब ये नंबर से यहाँ पे एक बॉक्स बना दो,
अगेन इसको अब चेक करेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 2 से हो रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 अगेन। सो इसको अगेन हम लोग ऐसा फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसको चेक करेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है। सो 2 4 जा 8, 1 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब इसको हम लोग बॉक्स के अंदर रखेंगे। फिर इसको चेक करेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, यस 3 से हो रहा है डिवाइड। सो 3 1 जा 3, 10, 3 3 जा 9, 19, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। सो अब इसको चेक करेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है अगेन। सो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब इसको चेक करेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, 5 से होता। सो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं 7 से हो रहा है डिवाइड, 13 टाइम में। अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब तो कोई से डिवाइड ही नहीं होगा। अब हम लोग इस तरह से ट्री फैक्टराइजेशन में किसी नंबर को नोट कर सकते हैं, लाइक दिस 32760 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, लाइक दैट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मच टाइम, 2 3 टाइम्स, सो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इस तरह से हम लोग ट्री फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे और आराम से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करिए, बनाइए। अब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि आपका अब से पढ़ाई शुरू हो जाना अनिवार्य है, नेसेसरी है। सो NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, different books just you take and now start through the chapters real number. So be continue, all the very best.